Hello everyone and welcome back in Hotel Management lecture videos. This is Dushyant Singh, Assistant Professor BVDU, and you are watching first lecture of Food Production Semester 3rd. Subject code is BHM 2301. So let me tell what we have to read in the first topic of first unit. The topic is stock. In this topic, we will read about the definition of stock, classification and types of stock, rules for stock preparations, and recipes of various stocks. Definition: stock is a flavorful and nutritious extract or liquid made by the careful simmering of meat and meat bones or fish and fish bones plus aromatic vegetable seasoning and flavoring. As per the definition, there is no such thing as a vegetable stock, but the cooking liquor obtained from cooking vegetable could be used in the place of stock in some cases and should be referred as to pot liquor. The importance of stock in the kitchen is indicated by the French word of stock, fond, meaning foundation or base. In classical cuisine, the ability to prepare good stock is the most basic of all skills because so much of the work in the kitchen depends upon them. A good stock is the base for soup, sauce, gravy and stews. So as per the definition, we can see stock is a flavorful and nutritious extract or liquid made by the careful simmering of meat and meat bones, fish or fish bones plus some aromatic vegetables or seasoning. So basically ये स्टॉक होता क्या है कि स्टॉक और हम क्यों बनाते हैं. तो स्टॉक एक बेस लिक्विड है जिसे हम किचन में डिफरेंट टाइप्स की ग्रेवीज, सॉसेस या स्टॉक या सूप बनाने में यूज करते हैं. जहाँ पे भी हमें बेसिक लिक्विड एज वाटर यूज करने वाले हैं वहाँ पे हम स्टॉक को यूज करते हैं. और चूँकि स्टॉक में क्या है कि बहुत ही ज़्यादा हाईली फ्लेवर है, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं, तो जहाँ पे भी हम वाटर यूज कर रहे हैं वहाँ पे अगर हम स्टॉक यूज करें तो डेफिनेटली उस डिश की जो क्वालिटी है, फूड वैल्यू है, न्यूट्रिशन है, टेस्ट है, वो इंक्रीज हो जाता है. स्टॉक बनाने का एक बेसिक फंडा या रीज़न ये भी है कि हमारे पास जब हम डिफरेंट टाइप्स की डिशेस बनाते हैं तो डिफरेंट टाइप्स की कटिंग यूज़ करते हैं, चाहे वो वेजिटेबल हो या डिफरेंट टाइप्स के मीट्स हों. तो डिफरेंट टाइप्स की कट्स यूज करने के बाद हमारे पास बहुत सारे अनयूज्ड पार्ट रहते हैं जिनका हम कोई यूज नहीं कर सकते. उन्हें हम या तो डस्टबिन में फेंक सकते हैं. तो हम क्या करते हैं कि उन अनयूज्ड पार्ट को वाटर में बॉयल कर लेते हैं स्लो प्रोसेस में, ताकि जो उनके अंदर का न्यूट्रिशन है डिफरेंट टाइप्स के, जैसे मीट है, मीट के बोन्स हमारे लिए अनयूज्ड होते हैं. तो मीट के बोन्स में जब हम स्टॉक बनाते हैं तो बोन्स के अंदर का जो कोलेजन है या जेलेटिन है ये वाटर में आ जाते हैं. तो एक बेसिक लिक्विड यूज करने की जगह पे हम अगर स्टॉक यूज करें तो क्या होता है कि एक तो ये न्यूट्रिशनल वैल्यू इसके ज़्यादा होते हैं और दूसरा इसमें थिकनेस रहती है, रिचनेस रहती है. तो जो भी हम स्टॉक या सूप, करीज या डिफरेंट टाइप के सॉसेस बना रहे हैं तो अगर हम एज ए वाटर की जगह पे स्टॉक यूज करते हैं तो उस डिश की जो पर्टिकुलर डिश बनने वाली उसकी थिकनेस भी हमारी बढ़ जाती है. तो बेसिक यूज हमारे ये है कि जहाँ जहाँ पे भी हम वाटर यूज करने वाले हैं वहाँ पे हम स्टॉक यूज करते हैं. तो यही रीज़न है कि किचन की जो बेसिक है, बेस प्रोडक्ट है, वो हमारा स्टॉक माना गया है. कॉन्टिनेंटल कुकरी का जो फाउंडेशन है वो स्टॉक है, क्योंकि स्टॉक की क्वालिटी पे ही हमारे आगे बनने वाले जो भी हमारे डिशेस हैं वो डिपेंड करते हैं, उनकी क्वालिटी कितनी अच्छी ये डिपेंड करता है. Stock is the most important liquid base used in the preparation of many dishes such as soup, sauces and most braised food and stews. The importance of stock is indicated by the French word fond, meaning foundation or base. In a kitchen, the ability to prepare stock is the most basic of all skills because so much of work of the kitchen depends on them. In the modern kitchen, stock have lost much of the importance they once had. Due to the increased reliance on the portion control meats had made bones for stock a rarity, lack of flavor, the tendency to serve food without sauces, and also due to the dependency on convenience stock in the form of powder or cubes. Nevertheless, the finest cuisine still depends on the soup and sauces based on high quality stocks. So, stocks making skill still remains an essential part of a chef's training. Stocks are never served by themselves but
are components of many other preparations. A stock may be defined as a nutritious, flavorful, clear, thin liquid that is unthickened, obtained or extracted by the careful simmering of meat or poultry or fish and their bones and or vegetables, seasoning and flavoring for a predetermined period of time. Our objective in preparing stock is to select the proper ingredients and then to extract the flavor we want. It is used for making soups, sauces, stews, glazes and aspics and as moistening agent. Glaze or glazes. Glazes or glazes are prepared by reducing appropriate stock to a barely flowing consistency. The stock is allowed to simmer gently, paying attention to regular skimming. Then liters of stock will yield 200 ml of glaze. Glazes can be stored for several days. Example: glaze di viande, meat glaze, glaze di volatile, chicken, glaze di poison fish. So glazes क्या है? Glazes are prepared by reducing stock. मतलब स्टॉक को अगर हम रिड्यूस करें और ज़्यादा उसको कुक करते जाएं, उसकी कंसिस्टेंसी को बढ़ाते जाएं, तो वो आगे चल के ग्लेज बनता है. यानी कि 10 लीटर ऑफ स्टॉक को जब हम काफ़ी थिक करते जाएं कि उसकी जो कंसिस्टेंसी है थिक होती जाए और वो 10 लीटर से घटता जाए और बाद में 200 ml बनता है, तब वो जाके ग्लेज बनता है. यानी कि 10 लीटर स्टॉक यूज होता है 200 ml ऑफ ग्लेज बनाने के लिए. तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक होगी किसी भी स्टॉक के कंपैरिजन में. और ग्लेजेस कई टाइप्स के होते हैं, डिपेंड करता है कि हमने किस तरह का स्टॉक यूज़ किया. अगर हमने मीट का ग्लेज बनाना तो फिर हम मीट का स्टॉक यूज़ करेंगे, और चिकन का ग्लेज बनाना तो फिर हम चिकन का स्टॉक यूज़ करेंगे, और अगर फ़िश का ग्लेज बनाना तो फिर हम फ़िश का स्टॉक यूज़ करेंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉक्स. Classification of stock depend on two factors. One is the types of bone used and the second is color of stock. The kind of bone used determine the kind of stock, that is, chicken stock from the chicken bones, white stock is made from the beef or veal bones or combination of the two, chicken stock or pork stock is made from chicken bones or pork bones, brown stock is made from beef or veal bones that have been browned in the oven. Fish stock is made from the fish bones, trimmings left over after the filleting of the fish. Bones from lean white fish gives the best stock. Fat or oily fishes are not normally used. The term fume is often used for a flavorful fish stock, especially one made with wine. Lamb, game, turkey and other stocks have specialized uses. So this type of classification is based on the type of bone used for making different types of stock, as chicken bone should be used for chicken stock, beef bone should be used for beef stock, and fish bone should be used for fish stock. On the basis of color, there are two types of stock: white stock or clear stock and brown stock. White stocks are made from bones of veal, beef, poultry, some types of games and fishes. The bones are washed to remove the impurities that might cloud or discolor the finished stock. Example: Fons blanc de veau means veal stock or mutton stock. And the brown stock are prepared by first roasting the meat bones to deep brown color as well as mirepoix before they are simmered. And acid products such as tomato puree may be also added. This changes both the flavor and color of the finished stock. Brown sauce are especially valuable in making brown sauce, jus lai, demi-glace and pan gravies. Example: Fond brun de veau means brown veal stock and brown game stock. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास एज ए ऑन द बेसिस ऑफ कलर वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्टॉक, वाइट स्टॉक और ब्राउन स्टॉक. तो जो वाइट स्टॉक है इसे हम क्लियर स्टॉक भी कहते हैं. क्लियर स्टॉक का मतलब है कि ये एकदम क्लियर होगा, दिखने में ट्रांसपेरेंट होगा, इसमें किसी भी तरह की कोई भी गंदगी या सेडिमेंट्स नहीं होंगे, ना तो कोई फ्रॉथ होगा ना भी कोई भी पार्टिकल्स होगा. तो इससे हम क्या करते हैं, क्लेरिफाई करके बनाते हैं, बोन्स वगैरह को अच्छे से वॉश करके बनाते हैं, तो हमारा क्लियर स्टॉक बनता है. वहीं पे ब्राउन स्टॉक क्या होता है, ये कलर में थोड़ा सा ब्राउन कलर का होता है. इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हम
डिफरेंट टाइप्स की बोन्स यूज कर रहे हैं, उन बोन्स को भी हम ब्राउन करने के लिए क्या करते हैं, उसको रोस्ट कर लेते हैं अच्छे से। फिर क्या करते हैं, हमारे दूसरे आइटम्स हैं मीर पोहा। तो इस मीर पोहा को भी हम बटर वगैरह हम डाल के सौते कर लेते हैं ताकि उनका कलर भी थोड़ा सा ब्राउनिश आ जाए। और लास्ट में हम क्या करते हैं, इसमें कुछ एसिडिक प्रोडक्ट मिला सकते हैं, कुछ लेमन जूस डाल सकते हैं या विनेगर डाल सकते हैं, या फिर हम टोमेटो प्यूरी यूज करते हैं। तो टोमेटो प्यूरी से हमारे पास दो फ़ायदे हो जाते हैं। पहला कि एसिड का काम भी हो जा रहा है, उसमें थोड़ा सा एसिडिक होता है, और दूसरी चीज़ है कि वो कलर को भी डीप कलर कर देती है। तो जब हम ब्राउन स्टॉक बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, 3 स्टेप यूज करते हैं। फर्स्ट, पहले हम बोन्स को ब्राउन करते हैं रोस्टिंग करके, सेकेंड मीर पोहा को ब्राउन करते हैं, और थर्ड हम टोमेटो प्यूरी मिलाते हैं। तो जब हम ये 3 चीज़ें ऐड करके जब हम उसको वाटर ऐड करके सिमरिंग प्रोसेस में डालते हैं तो आगे चल के हमारा जो स्टॉक बनने वाला है वो काफ़ी ब्राउन कलर का बनने वाला है। तो इस तरह से हमारा ये ब्राउन स्टॉक बनता है। फिश स्टॉक फ्यूमे इज प्रिपेयर्ड बाय स्वीटिंग फिश बोन्स along with the vegetables such as leeks, mushroom and celery, and simmering these ingredients in water in the addition of dry white wines. The end result is generally not as clear as stock, but it is highly flavored. Fume, highly flavored infusion, is used to introduce flavor to other preparations such as consommés or broth and a variety of small sauces. Vegetable stock. It is a vegetable version of stock. Different kinds of vegetable are simmered together and the liquid is strained and used to improve the taste and nutrient quality of vegetarian dishes. Remoulade. Remoulade is a stock made from the bones that have already been used once to make stock. रेमुलेज को क्या है, सेकंड स्टॉक के नाम से भी किचन में जानते हैं। तो रेमुलेज क्या है, इसमें हम इस तरह की बोन्स यूज करते हैं जिसका ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं एक बार स्टॉक बनाने में, यानी कि बोन्स से जिससे हम एक बार स्टॉक बना चुके हैं उन बोन्स को यूज करके हम फिर से अगर पानी में डाल के सिमरिंग करें तो जो हमारे पास सेकंड प्रोडक्ट बनने वाला है उसे हम रेमुलेज कहते हैं या फिर सेकंड स्टॉक कहते हैं। द लिटरल मीनिंग ऑफ द फ्रेंच टर्म इज रीवेटिंग बिकॉज नॉट ऑल पॉसिबल फ्लेवर एंड जिलेटिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोन्स व्हेन मेकिंग स्टॉक। Making a remoulade allows the chef to extract a little more value from the bones. The resulting liquid will not be as clear or flavorful as the original stock, but does have some uses. Bones used to prepare a primary stock are reserved after the first stock is strained away from the bones. तो फर्स्ट स्टॉक जब हम बनाते हैं, फर्स्ट टाइम बनाते हैं, तो उसे स्ट्रेन करने के बाद जो हमारे पास बोन्स हैं उनको हम स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि कितना भी हमने स्टॉक बनाया तो हमारे पास बोन्स का सारा न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ होता। तो हम क्या करते हैं, एक प्राइमरी स्टॉक बना लेते हैं लेकिन उनके बोन्स को फेंकते नहीं हैं, उनके बोन्स को हम दोबारा रीयूज करते हैं, और रीयूज करने के बाद जो हमारे पास जो स्टॉक बन के आता है उसे हम रेमुलेज कहते हैं। द बोन्स आर कवर्ड विद द फ्रेश कोल्ड वाटर एंड फ्रेश मीर पोहा एंड सैसेज आर एडेड to the bones and the simmered for about 4 hours to prepare the secondary stock. Drain and cool as for regular stock. The stock may not be best quality but it can be used as the basis of braises and stews. तो जाहिर सी बात है ये उतना ज़्यादा क्वालिटी का नहीं है, उतने ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर हम वाटर के कंपैरिजन में देखें तो वाटर के कंपैरिजन में इसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशनल है और थिकनेस भी रहेगी। The food being cooked will provide the majority of the flavor in the finished sauce, and the first rate stock can be reserved for the use in dishes where its role is more significant, like in the preparation of consommes etc. तो जो हमारे पास फर्स्ट स्टॉक बना के रखा है उसका हम क्या करेंगे, उसको स्टोर करके रखेंगे ताकि हम डिफरेंट पर्टिकुलर डिशेज जहाँ पे हमें स्टॉक की ज़रूरत पड़ेगी ही वहाँ पे यूज़ करेंगे। और ये जो रेमुलेज है या सेकेंडरी स्टॉक है इसका यूज हम किसी भी अदर स्ट्यूज या करीज बनाने में जहाँ पे हम वाटर यूज करने वाले वहाँ पे यूज कर सकते हैं इसे। कोल्ड बॉयलन ए सॉल्ट ब्रॉथ इज ऑफन प्रिपेयर्ड एज द कुकिंग लिक्विड फॉर डिश और वेजिटेबल। द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कोल्ड बॉयलन इंक्लूड एरोमेटिक वेजिटेबल एंड हर्ब्स, विनेगर, वाइन और लेमन जूस एंड वाटर। ए कोल्ड बॉयलन may be prepared as part of the cooking process or it may be prepared in large batches and used as required, in the same way as stock. Pot liquor. Pot liquor is the water in which meat, poultry, fish, vegetable, pasta, etc. have been boiled for the table
where the purpose is retain as much nutrients and flavor in the solid as possible. The liquid can be used as a substitute for stock if it is not readily available. तो बेसिकली पॉट लिकर का है जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स की मीट, पोल्ट्री, फिश या वेजिटेबल या पास्तास को बॉयल किया था ताकि उनको हम कुक कर सकें। तो कुकिंग के दौरान भी हमारा काफ़ी न्यूट्रिशन जो मीट से, पोल्ट्री से है, फिश से, वो वाटर में एक्सट्रैक्ट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको पॉट लिकर बोलते हैं। इसको हम फेंकते नहीं हैं, इसे डिफरेंट टाइप्स की अदर डिशेस में हम यूज़ करते हैं एज ए सब्सटीट्यूट ऑफ स्टॉक। तो हमारे पास जो स्टॉक है वो तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल रहता है, लेकिन पॉट लिकर में भी हमारे पास काफ़ी न्यूट्रिशन रहता है, तो इसे हम एज ए सब्सटीट्यूट ऑफ स्टॉक यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज इमरजेंसी स्टॉक और कन्वीनियंट बेसिस। व्हेन देयर इज ए टेम्परेरी शॉर्टेज ऑफ स्टॉक, कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स सच एज स्टॉक क्यूब्स और प्रोप्रिएटरी एसेंट्स आर यूजफुल, but in general these are not suitable for large scale use since they can produce a stock which is already seasoned. सो इमरजेंसी स्टॉक्स में क्या है, जो हमारे पास कॉमर्शियली रेडीमेड प्रोडक्ट यूज हैं जिनका हम एज ए इमरजेंसी में स्टॉक बनाने के लिए यूज करते हैं। तो ये हमारे पास किचन में अवेलेबल डिफरेंट टाइप्स के रेडीमेड स्टॉक क्यूब्स आते हैं या स्टॉक के पाउडर्स आते हैं जिन्हें हम वाटर में मिक्स करके स्टॉक बना लेते हैं। तो ये हमारे इमरजेंसी स्टॉक्स के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ स्टॉक। तो किसी भी स्टॉक के बेसिक एलिमेंट्स क्या हमें बेसिक एलिमेंट्स चाहिए जिससे कि हमारे पास स्टॉक बनते हैं। सो वाटर, फर्स्ट वन इज वाटर, क्योंकि वाटर ज़रूरी है हमारे पास ताकि हम बाकी जो भी हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हम सिमर कर सकें। तो फर्स्ट वन इज वाटर। सेकंड वन इज बोन्स और मीट। मीट क्योंकि काफ़ी कॉस्टली है तो मीट का इस्तेमाल या यूज है बहुत कम हो रहा है आजकल। तो बेसिकली हमारा जो स्टॉक बना हुआ है सारा वो बोन से ही बनता है। तो सबसे बड़ा और बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या हमारा स्टॉक का, बोन्स। सेकंड वन इज बोन्स एंड द थर्ड वन इज मीरपुआ। मीरपुआ क्या है, मीरपुआ डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेबल है जिसमें कि लीक, सैलरी, कैरेट और अनियन बराबर क्वांटिटी में रहती है, यानी कि 25% ईच। मीरपुआ का यूज है स्टॉक को फ्लेवर देना। फोर्थ वन है एसिड। एसिड में हम टोमेटो यूज कर सकते हैं या विनेगर या वाइन यूज कर सकते हैं। तो अगर हमारा ब्राउन स्टॉक है तो हम टोमेटो यूज करेंगे, अदरवाइज अगर हमारा क्लियर स्टॉक है तो फिर हम विनेगर यूज करेंगे। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज सैशे और बुके गार्नी। बुके गार्नी क्या है, ये भी फ्लेवर देने के लिए यूज होता है। इसमें बुके गार्नी का बेसिक मीनिंग है ए बंडल ऑफ हर्ब्स, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के हर्ब्स का बंडल बना के हम इसमें स्टॉक में डालते हैं। हर्ब्स क्या होते हैं हमारे पास, बे लीफ हो सकता है, क्लव्स हो सकते हैं, पेपरकॉर्न हो सकते हैं, या डिफरेंट टाइप्स के अदर हर्ब्स जैसे कि रोजमेरी या थाइम हो सकते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हर्ब्स के बंडल बना के हम उसमें डालते हैं। तो बेसिक एलिमेंट्स हमारे वाटर, बोन्स, मीरपुआ, एसिड एंड सैशेज यानी कि बुके गार्नी। प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल प्रिपेयरिंग स्टॉक। हमें एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक बनाते समय क्या क्या प्रिकॉशंस देखनी वो हम यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट वन इज इफ पॉसिबल यूज स्टॉक पॉट विद द बॉटम एम्पटिंग टैप। दिस फैसिलिटी इज द ड्राइंग ऑफ द स्टॉक and lessens the possibility of disturbance while straining waste and facilitates easy straining। तो फर्स्ट वन क्या है कि हमारे पास जहाँ तक पॉसिबल हो सके हम एक ऐसा स्टॉक पॉट यूज करें जिसमें नीचे की टैप लगा हो, नल जैसा लगा हो, ताकि हम जब लास्ट में हमारा स्ट्रेन होके बन जाता है स्टॉक तो क्या होता है जो फ्रॉथ है या जो गंदगी होती है वो सरफेस पे स्टोर होती है। तो अगर हमारे पास स्टॉक पॉट में नीचे टैप लगा हुआ है तो हम क्या करते हैं वहाँ से खोल के स्टॉक अपना स्ट्रेन कर लेते हैं। तो स्ट्रेनिंग में काफ़ी फ़ायदा मिलता है और ईजी हो जाता है। सेकेंड वन है यूज फ्रेश इंग्रेडिएंट्स ऑफ गुड क्वालिटी एंड ऑलवेज इन द राइट प्रोपोर्शन। हम स्टॉक में डिफरेंट टाइप्स के अनयूज पार्ट डालते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक एक कोई गार्बेज बिन है जो हमें मिल रहा है हम उसमें डाल देंगे। तो जितना हमारे इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी अच्छी रहेगी लास्ट में हमारा उतना ही अच्छा स्टॉक बनेगा, और फिर स्टॉक अच्छा रहेगा तो फिर हमारी जो आगे डिश बनने वाली वो अच्छी रहेगी। तो यूज ऑफ फ्रेश इंग्रेडिएंट्स ऑफ गुड क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। द थर्ड वन इज cut meat bones into smaller pieces for maximum exposure for maximum extraction. Then marrow it present should be removed to avoid cloudiness. थर्ड वन क्या करेंगे, हम बोन्स को छोटे छोटे पीसेस में डाल दें, क्योंकि जो हमारा बोन मैरो है या जिलेटिन है वो बोन्स के अंदर मिलता है। बोन्स पोरस होते हैं और खोखले होते हैं, जो खोखला इनमें पाइप जैसा होता है उसमें मैरो होता है। तो अगर हम ब्रेक करके डालते हैं तो उसका जिलेटिन और मैरो इजीली पानी में एक्सट्रैक्ट हो जाता है। सो
कट मीट बोन्स इंटू स्मॉलर पीसेस फॉर मैक्सिमम एक्सपोजर। जितना एक्सपोजर ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमारा न्यूट्रिशन का एक्सट्रैक्शन ज़्यादा होगा। फोर्थ वन, इफ़ एनी मीट्स आर यूज दीज शुड बी ट्राइड सो दे कैन बी रिमूव्ड वाइल कुकिंग। तो अगर हम कोई मीट प्रोडक्ट इसमें यूज कर रहे हैं, वैसे तो हम केवल बोन्स यूज करते हैं, लेकिन अगर हम कोई मीट यूज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उस मीट को बांध देंगे, किसी धागे से टाई कर देंगे ताकि हम बाद में उसको ईजिली रिमूव कर सकें। क्योंकि हम बाकी की जो भी स्ट्रेनिंग करते हैं उसको फेंक देते हैं, लेकिन हमारा मीट काफ़ी कॉस्टली होता है और ईडेबल भी है, तो हम उसको फेंकते नहीं, हम कुकिंग में यूज करते हैं और बाद में मीट प्रोडक्ट को बाहर निकाल लेते हैं ताकि उसे डिफरेंट यूजेस में यूज कर सकें। फिफ्थ, the stock should be brought to boil slowly and simmer gently to avoid excessive evaporation. Remove the scum as and when necessary. Stock should be brought to boil slowly. स्टॉक हम जब भी कुक बनाएंगे तो उसे हम बहुत ही स्लोली बॉयल करेंगे, यानी कि 100 डिग्री से हमेशा नीचे रहेगा। सिमरिंग का प्रोसेस हमेशा 90 डिग्री के आसपास होता है। सिमरिंग क्यों करते हैं, इसके दो फ़ायदे हैं। पहला कि हमारा जो वाटर का इवेपोरेशन है वो कम से कम होता है, क्योंकि वाटर हमेशा 100 डिग्री पे बॉयल होने के बाद ही इवेपोरेट होता है। तो अगर हम उसे 100 डिग्री से नीचे रखें तो वाटर का इवेपोरेशन कम होता है और इससे हमारा जो फ्यूल है, गैस है, जो भी है फ्यूल, वो बचता है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर हम उसे हाई फ्लेम में करें तो जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो जल्दी कुक हो जाएंगे, ना कि उसका जो न्यूट्रिशन है वो वाटर में एक्सट्रैक्ट होगा। तो हमारा फंडा है कि हम बेसिक जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं उसका न्यूट्रिशन हम वाटर में एक्सट्रैक्ट कर सकें, ना कि हम उसको कुक करें। कुकिंग करने से क्या है कि फिर वो प्रोडक्ट धीरे धीरे क्लाउडी होने लग जाते हैं और हमारा स्टॉक जो है पूरा क्लाउडी हो जाएगा। तो इस तरह अगर हम हाई फ्लेम में बनाएंगे तो कभी भी क्लियर स्टॉक नहीं बना सकते। सो स्टॉक शुड बी ब्रॉट टू बॉयल ऑलवेज स्लोली एंड सिमर जेंटली टू अवॉइड एक्सेसिव इवेपोरेशन। और क्या करना है, जो भी हमारा स्कम जितना भी आता रहेगा स्कम को हम तुरंत भी रिमूव करते रहेंगे। नेक्स्ट, रिप्लेनिश विद वाटर एज एंड व्हेन नेसेसरी। तो इसमें क्या करते हैं, वाटर इवेपोरेट होता रहता है, क्वांटिटी हमेशा कम होती रहती है। तो अगर क्वांटिटी बहुत कम हो रही है, हमारे इंग्रेडिएंट बाहर आ रहे हैं पानी से, तो फिर हम वाटर फिर से रिप्लेनिश कर देते हैं, उसमें वाटर फिर से भर देते हैं। कुक फॉर द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम, ओवर कुकिंग विल रिजल्ट इन डिटेरियोरेशन ऑफ द टेस्ट एंड क्वालिटी। तो डिफरेंट टाइप्स की स्टॉक की जो कुकिंग टाइम है वो अलग अलग है। जितनी बोन सॉफ्ट होगी उतना ही कुकिंग टाइम कम रहेगा। जैसे फ़िश की बोन्स है बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, तो फ़िश बोन्स की जो अगर हम फ़िश स्टॉक बना रहे हैं तो हमारा कुकिंग टाइम काफ़ी कम रहेगा, यानी कि जो लगभग 40 मिनट से 1 घंटे के आसपास रहता है। 14 मिनट से 1 आवर इज़ इनफ फॉर फिश स्टॉक। अगर हम उसे ओवर कुकिंग करते हैं तो क्या होता है, जो टेस्ट है वो भी ख़राब होता है और उसकी क्वालिटी ख़राब होने लगती है, क्योंकि बोन्स क्या करते हैं, क्लाउडीनेस करना लग जाता है। तो हमारे जो डिफरेंट टाइप्स की रिक्वायर्ड अमाउंट टाइमिंग है, टाइमिंग की जो अमाउंट है उसके हिसाब से ही हम हमेशा कुक करेंगे, जो कि डिपेंड करती है। अगर फ़िश का स्टॉक है तो हमारा 40 मिनट से 1 घंटा काफ़ी, और अगर हमारा चिकन स्टॉक हम बना रहे हैं तो चिकन स्टॉक के लिए 2 आवर्स इज़ इनफ, एंड फॉर मटन स्टॉक 4 to 6 आवर, एंड फॉर बीफ बोन्स अगर हम बीफ स्टॉक बना रहे हैं तो फिर हमारा कम से कम 6 से 8 घंटे सिमरिंग प्रोसेस होना ही चाहिए। तो कभी भी हम ओवर कुकिंग नहीं करते। ओवर कुकिंग का ध्यान हमें हमेशा क्लियर स्टॉक में रखना है। तो बेसिकली अगर हम फिश स्टॉक बना रहे हैं या अदर टाइप्स के वाइट स्टॉक बना रहे हैं जिसमें हम व्हील या मटन स्टॉक मटन की बोन्स यूज करते हैं, तो वहाँ पे हमें बहुत ध्यान रखना कि हम ओवर कुकिंग ना करें। A very little salt may be added for developing flavor. Too much can unbalance the seasoning of the dish in which it is used. तो सॉल्ट ये स्टॉक क्या हमारा बेसिक लिक्विड है, ना कि कोई डिश है। तो इसका हम यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप की डिशेस में। तो हम इसमें ज़्यादा नमक मिला के नहीं रखते हैं, क्योंकि हमें फाइनली जब हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसकी सीजनिंग हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही कम क्वांटिटी में हम लिटिल बच सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, या फिर हम ना के बराबर ऐड करें। नेक्स्ट वन, कूल द स्टॉक एज फास्ट एज पॉसिबल एंड रेफ्रिजरेट। तो जैसे भी हमारा स्टॉक कंप्लीट होगा उसे हम जितना जल्दी हो सकता है उसे ठंडा करेंगे और उसके बाद रेफ्रिजरेट कर देंगे। रिडक्शन एंड ग्लेजेस, स्टॉक्स आर कंसनट्रेटेड बाय बॉइलिंग और सिमरिंग them to evaporate part of the water. This is called making a reduction or reducing. रिडक्शन का सीधा मतलब है कि किसी भी चीज़ को रिड्यूस करना, यानी कि उसका जो वाटर पार्ट है उसको कुक करके, बॉयल करके, सिमरिंग करके इवेपोरेट करना। तो जिस चीज़ का भी हम रिडक्शन बनाते हैं वो चीज़ धीरे धीरे थिक होना शुरू हो जाती है। दिस इज कॉल्ड मेकिंग ए रिडक्शन और रिड्यूसिंग, यानी कि रिड्यूस करना या रिडक्शन बनाना।
Reduction is an important technique in sauce making and in many other areas of cooking because it produces a more flavorful product by concentrating it. A reduced stock also had more body because the gelatin is concentrated. A glaze is a stock that is reduced until it coats the back of a spoon. ग्लेज क्या है? बेसिकली स्टॉक को हम रिड्यूस करते जाते हैं, लगभग 3/4 रिड्यूस कर देते हैं, यानी कि हमारा अगर 1 लीटर है तो 200 ml तक ही बचेगा। इसे हम इतना थिक करते हैं कि अगर हम इसमें कोई स्पून डिप करें तो उसकी जो बैक है स्पून की वो पूरी कोटेड हो जाती है। इट इज़ सो कंसनट्रेटेड reduced by 3/4 or more that is solid and rubbery when refrigerated। तो बेसिकली स्टॉक थिक क्यों होता है? उसमें जिलेटिन होता है इसलिए। तो जब भी स्टॉक या ग्लेज को हम रेफ्रिजरेट करते हैं तो ठंडक पाके वो जिलेटिन जैसा स्ट्रक्चर यानी कि जेली जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। तो हमेशा जब भी इसे हम ठंडा करेंगे तो रबर जैसा या जेली जैसा फॉर्म हो जाता है। Glazes are used as flavoring in sauces making and in some meat, poultry, fish and vegetable preparations. Only small amount are needed because they are so concentrated। तो अगर हम कोई भी डिश बना रहे हैं जैसे कि वेजिटेबल डिश बना रहे हैं या पोल्ट्री मीट अगर अदर डिशेज बना रहे हैं तो वहाँ पे अगर हम स्टॉक यूज करते हैं तो काफ़ी क्वांटिटी में स्टॉक यूज करते हैं। वहीं पे अगर हमारे पास ग्लेज है तो फिर ग्लेज हम काफ़ी कम क्वांटिटी में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि काफ़ी कंसनट्रेटेड फॉर्म में है, ये थोड़ी सी क्वांटिटी में ही हमारे पूरी ग्रेवी या डिश को थिक करने के लिए काफ़ी है। Glazes diluted to original strength do not taste like the stock they were made from। तो अगर हम ग्लेजेस को फिर से पानी मिला के स्टॉक बनाने की कोशिश करें तो हमारा कभी भी स्टॉक जैसा टेस्ट नहीं आता है। ग्लेजेस में अपने आप में ही एक अलग टेस्ट रहता है। द लॉन्ग कुकिंग चेंजेस द फ्लेवर समवॉट। तो क्योंकि इनमें ज़्यादा कुकिंग होती है तो फ्लेवर कहीं ना कहीं चेंज हो ही जाता है। द इंग्रेडिएंट्स। सो यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन कराएंगे हमारे बेसिक इंग्रेडिएंट जिससे कि हमारा स्टॉक बनता है। तो बेसिक इंग्रेडिएंट्स फॉर स्टॉक मेकिंग इज फर्स्ट बोन्स, मीट, मिरपोआ, एसिड, लेफ्ट ओवर फूड, seasoning and spices। These are the basic ingredients used for stock making। The bones। Bones are major ingredients in the making of stock। Most of the flavor and the body of stock are obtained from bones of beef, veal, chicken and other poultry and fishes। Occasionally lamb, goat, pork and game bones are used for a specific purpose। The kind of bones used would of course indicate the type of stock। Chicken stock is made from chicken bones, veal stock is made from veal bones, fish stock is made from fish bones and beef stock is made from beef bone। तो बोन्स जो है ये हमारा मेजर इंग्रेडिएंट्स है क्योंकि जितना भी स्टॉक की बॉडी और थिकनेस मिलनी है वो हमारे बोन्स के जो न्यूट्रिशन है वही वाटर में एक्सट्रैक्ट होते हैं, जिलेटिन है या कोलेजन है, इनसे हमारा स्टॉक बनता है। और डेफिनेटली जो बोन्स की क्वालिटी है, जो टाइप्स ऑफ बोन्स है ये डिपेंड करेगा कि हमारा किस तरह का स्टॉक बनने वाला है। जैसे कि चिकन स्टॉक के लिए हम चिकन बोन्स यूज करते हैं, व्हील स्टॉक के लिए व्हील बोन्स यूज करते हैं, फिश स्टॉक के लिए हम फिश बोन यूज करेंगे और बीफ स्टॉक के लिए बीफ बोन्स यूज करेंगे। सेकेंड वन इज मीट। बिकॉज ऑफ इट्स कॉस्ट मीट इज़ रेयरली यूज नाउ डेज इन स्टॉक मेकिंग। तो मीट इसका इंग्रेडिएंट्स है, मीट से भी स्टॉक बना सकते हैं क्योंकि मीट में भी काफ़ी न्यूट्रिशन होते हैं। अगर हम स्लोली इसे कुक करें तो हमारा मीट से भी स्टॉक बन सकता है, लेकिन मीट की काफ़ी कॉस्ट ज़्यादा है और मीट का हमारे पास यूज भी है। मीट हम खा सकते हैं लेकिन बोन्स खाते नहीं। तो स्टॉक में हम क्या करते हैं, मोस्टली अनयूज पार्ट यूज करते हैं। हमारे पास बोन्स हैं, बोन्स को हम खा नहीं सकते तो बोन्स का हम स्टॉक बनाते हैं, लेकिन मीट को हम ईट कर सकते हैं, खा सकते हैं, तो मीट के हम मोस्टली यूज नहीं करते। लेकिन अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं, हम मीट से भी स्टॉक बना सकते हैं। हाउएवर इन द क्लासिकल मेथड लार्ज पीसेस ऑफ टफर कट्स ऑफ मीट वर यूज टू ऐड फ्लेवर। तो डिफरेंट टाइप की क्लासिकल मेथड्स में जो टफ मीट के पीस होते हैं जिनको हम इजीली खा नहीं सकते, जैसे क्योंकि मोस्टली हम लोग टेंडर पीसेस खाते हैं। अगर हमारे पास कोई पुराना एनिमल है, एज्ड एनिमल है, तो उसका मीट काफ़ी टफ होता है जिसे हम खाने में यूज नहीं कर पाते हैं, तब हम ऐसे मीट को स्टॉक बनाने में यूज कर लेते हैं। Large pieces of tougher cuts of meat were used to add flavor, taste and nutritive value and to give body to the stock। Of course, suitable meats would be used beef or beef stock, chicken for chicken stock। तो हम यूज करते हैं मीट को, लेकिन मीट हमारा ऐसा होना चाहिए जो यूजेबल हो, ऐसा नहीं कि ख़राब मीट हम यूज कर सकते हैं। तो अगर हम बीफ स्टॉक बना रहे हैं तो फिर बीफ स्टॉक में हम बीफ के डिफरेंट पार्ट्स के
मीट यूज कर सकते हैं। चिकन स्टॉक बना रहे हैं तो फिर हम चिकन का मीट यूज कर सकते हैं। मीर पोहा। Aromatic vegetables are the second most important ingredient used to make stock. These add to the flavor and will include onion, carrot, celery and leek. When these vegetables are roughly cut and mixed together, they are referred to as meer poha, pronounced meer poha. A meer poha is used in all areas of cooking as a flavoring and not just in stock making. So you will come across this term often. मीर पोहा एक बेसिक टर्म है जो कि इंडिकेट करता है हमारे पास 4 वेजिटेबल के मिक्सचर का। इसमें होती है लीक, सैलरी, कैरेट एंड अनियन। लीक, सैलरी, कैरेट एंड अनियन, इसे याद रखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि मीर पोहा केवल स्टॉक में ही नहीं, बहुत सारी अदर डिशेस में भी, जैसे रोस्टेड चिकन वगैरह, वहाँ पे भी मीर पोहा यूज करते हैं। तो किचन में अदर डिशेस में हम कई जगह मीर पोहा यूज करते हैं, तो इसका नॉलेज होना ज़रूरी है। और वही मीर पोहा हम स्टॉक में भी फ्लेवरिंग के लिए यूज करते हैं। Acid. Acid products help to dissolve the connective tissues present in meat and bones. Tomato product paste or puree or juices are used in brown stock but would discolor white stock. Lemon juice or white vinegar is commonly used acid product. Wine is occasionally used, especially for fish stock. However, its flavor contribution is more important than its acidity. तो एसिड प्रोडक्ट हम यूज करते हैं डिफरेंट टाइप्स की स्टॉक बनाने में। इसका यूज क्या है? एसिड हेल्प करता है टू डिजॉल्व द कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन मीट एंड बोन्स। तो मीट में और बोन्स में हमारे कनेक्टिव टिश्यूज रहते हैं, जिनको डिजॉल्व करने के लिए हम एसिड प्रोडक्ट यूज करते हैं। वी कैन यूज टोमेटो प्रोडक्ट, लेमन जूस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ विनेगर और वाइन्स। डिफरेंट टाइप्स के स्टॉक में हम वाइन भी यूज करते हैं, लेकिन वाइन से एसिडिटी कम, प्लस उसका जो फ्लेवर है उसके लिए हम ज़्यादा यूज करते हैं। लेफ़्ट ओवर फूड। लेफ़्ट ओवर फूड मतलब जो भी हमारे पास बचा हुआ फूड है उससे हम स्टॉक में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे याद रखना है कि क्वालिटी ऑफ स्टॉक इज डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स। तो हम कभी भी लेफ़्ट ओवर फूड में कुछ भी उल्टा सीधा ऐड नहीं करते हैं। लेफ़्ट ओवर फूड में हम केवल वही चीज़ें यूज करते हैं जिसमें हमें पता है कि कुछ फ्लेवर या न्यूट्रिशन मिलने वाले हैं। These are constantly being added into the stock pot over a period of time. This may or may not be a good idea. Scraps and leftovers may be added if they are clean and appropriate to the stock being made. तो हम तभी यूज करेंगे कि अगर वो लॉजिकली उसमें यूज होनी चाहिए, ना कि हमारे पास अगर है तो हम बस उसे यूज कर देंगे। तो हमेशा हम यूज करेंगे या नहीं करेंगे डिपेंड करता है कि वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है हमारा लेफ्ट ओवर। Remember that the stock pot is not a garbage disposal unit and the final product is only as good as the ingredients that are used. तो जाहिर सी बात है, ये हमारा जितना अच्छा इंग्रेडिएंट यूज होगा हमारे स्टॉक की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। नेक्स्ट वन है सीजनिंग एंड स्पाइसेस। सीजनिंग में हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, फर्स्ट सॉल्ट एंड पेपर और दूसरी चीज़ है हर्ब्स। तो फर्स्ट वन इज सॉल्ट इज यूज इन माइन्यूट क्वांटिटी इन स्टॉक मेकिंग। They help to bring out the natural flavor in the stock. However, stock is rarely served as it is, but it's a part of some other dishes, which will have its own seasoning. Moreover, stock is always concentrated before use. So we can use salt in little much quantity because स्टॉक कोई पर्टिकुलर डिश नहीं जिसे हम यूज कर सकते हैं। ये हमेशा किसी न किसी दूसरे प्रोडक्ट का बेस प्रोडक्ट में यूज करते हैं, तो उसकी भी जो सीजनिंग हो सकती है वो हम फाइनली चेक करते हैं। तो हमारा स्टॉक को इतना सीजनिंग करना उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन हम थोड़ा बहुत सॉल्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्ट हेल्प करता है डिफरेंट टाइप्स के जो फ्लेवर उसमें पड़े हुए इंग्रेडिएंट्स पड़े उनका फ्लेवर एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, इसलिए हम लिटिल बिट सॉल्ट डाल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हर्ब्स एंड स्पाइसेस शुड बी यूज्ड ओनली लाइटली. They should never dominate a stock or have a pronounced flavor. Herb and spices are normally tied in a muslin cloth. So second one है herb हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, फ्लेवरिंग थोड़ा सा भी फ्लेवरिंग देने के लिए हम हर्ब यूज करते हैं, लेकिन हम याद रखते हैं कि हर्ब हम इतना ज़्यादा हार्डली या स्ट्रॉन्ग फ्लेवर का ना यूज करें कि हमारे पूरा जो बेसिक उसका फ्लेवर है वो डोमिनेट कर जाए, कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि फिश का स्टॉक है चिकन का स्टॉक है। तो हमारे हर्ब्स और स्पाइसेस हम ऐड करेंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली फ्लेवर के नहीं होंगे। और मोस्टली हम कैसे यूज करते हैं इसको, एज ए बुके गार्नी यूज करते हैं, यानी कि बंडल ऑफ हर्ब। तो एक मजलिन क्लॉथ में हम डिफरेंट टाइप्स के हर्ब और स्पाइसेस को बंडल बनाते हैं और 15 या 20 मिनट के लिए हम स्टॉक में ऐड कर देते हैं, उसको सिमर करते हैं और बाद में उसको स्ट्रेन करके बाहर निकाल देते हैं।
This is known as the sachet, or a bouquet garni is a kind of sachet which use parsley, stock, thyme, bay leaf, peppercorn. दिस इज द आइडियल कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक मेकिंग। तो स्टॉक मेकिंग के लिए जो हम बंडल ऑफ हर्ब यानी कि बुके गार्नी बनाते हैं उसमें हम पार्सले स्टॉक यूज कर सकते हैं, थाइम यूज कर सकते हैं, बे लीफ एंड पेपरकॉर्न। मोस्टली हम यही 4 चीज़ें थोड़ी सी क्वांटिटी में यूज करते हैं ताकि हमारा फ्लेवर भी आ जाए और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर भी ना आए। To make 400 gram of mirpua, you will need 200 gram of onion and leek, or 100 gram onion, 100 gram leek, 100 gram carrot and 100 gram of celery। तो लीक, सैलरी, कैरेट और ओनियन हमारे पास हमेशा बराबर बराबर क्वांटिटी में 25% ऑफ ईच हम लेते हैं और हमारा बनता है मीरपुआ। अगर हमारे पास लीक्स नहीं तो फिर हम 200 ग्राम ऑफ अनियन ले लेते हैं। टू मेक ए मीरपुआ फॉर ए वाइट स्टॉक, अगर हम वाइट स्टॉक के लिए मीरपुआ बना रहे तो फिर हम वहाँ से कैरेट नहीं लेंगे, क्योंकि कैरेट क्या करेगा, उसको कलर दे देगा। तो फिर उसमें हम कैरेट नहीं डालते हैं, केवल लीक, सैलरी और अनियन ऐड करते हैं। दिस इज डन सो एज टू ऑब्टेन ए कलर लाइक स्टॉक। As I have mentioned earlier, the vegetable of mirpua are roughly cut. The size depend on for how long you will cook the stock. Cooking time of the various stock will vary. तो वेजिटेबल है, वेजिटेबल की कुकिंग टाइमिंग कम होती है। अगर हम उसे 40 मिनट से ज़्यादा कुक करें तो वेजिटेबल स्टॉक को डिस्कलर करने लग जाएगी, क्लाउड करने लग जाएगी। तो हम क्या करते हैं, जो पीसेस है वो डिपेंड करता है कि हम कितनी देर के लिए कुक करने वाले हैं। अगर हमारा कम देर के लिए है तो फिर हम छोटे पीसेस करते हैं मीरपुआ के, या फिर हम बड़े पीसेस भी कर देते हैं। और सबसे अच्छा आइडिया है कि हम उसे हमेशा सिंपल से पीसेस में करके रखें और उसे लास्ट के 30 या 40 मिनट के लिए हम उसमें डालें और बाद में स्ट्रेन कर दें। यानी कि जब हमारा फाइनल कुकिंग टाइमिंग आ चुका है कि हमें आधे घंटे बाद स्ट्रेन करना ही है हमें स्टॉक को, उस समय हम इसमें मीरपुआ ऐड कर सकते हैं। Rules for making good quality stock. There are 2 important factors to keep in mind here. First is meat and bones contain connective tissues called collagen. On heating, these break down and form gelatin, and it is the gelatin that gives body to the stock. Body is an important feature in stock making and is a quality indicator. A well-made stock will thicken and even solidify when chilled. Second one is cartilage. Cartilage is the best source of gelatin in bones. Younger animals have more cartilage in their skeleton. As they get older, they harden into solid bones, which is harder to dissolve into the stock. Knuckle bones on the joints of major bones have a lot of cartilage and are valued in stock making. Neck bones and shank bones are also used a great deal. So these are the rules for making good quality stock. First one is add the blanch bone to the cold water. फर्स्ट वन है, हम पहले बोन्स को अच्छे से ब्लांच करेंगे ताकि उसकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो दूर हो जाए। तो फर्स्ट वन है, हम पहले बोन्स को अच्छे से ब्लांच करेंगे और ब्लांच करने के बाद फिर से इसकी कुकिंग ठंडे पानी शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इसे ठंडे पानी में ऐड करेंगे, फिर ब्रिंग द वाटर टू ए बॉयल, देन रिड्यूस टू ए सिमर। ठंडे पानी में हम बोन्स को ऐड करेंगे, उसको वाटर को बॉयल करेंगे और जैसे ही बॉइलिंग पे आ जाएगा उसको हम रिड्यूस कर देंगे सिमरिंग टेम्परेचर पे, यानी कि उसको बॉयल करने के बाद स्लो टेम्परेचर पे छोड़ देंगे। थर्ड वन इज स्किम द स्कम दैट राइजेज टू द सरफेस केयरफुली। जितना भी स्कम सरफेस पे आता जाएगा, जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो फ्रॉथ या झाग के रूप में हमारे स्टॉक की सरफेस पे आती रहती हैं, उन्हें हम स्ट्रेन करते रहेंगे। जैसे जैसे वो आता रहेगा उसे हम लेडल से स्किम करते रहेंगे, यानी कि उसको हटाते रहेंगे। Next one is add the mirpua and the sachet. Next, do not let the stock boil rapidly. Keep it at low simmer. Boiling makes the stock cloudy. तो स्टॉक को हमेशा सिमरिंग टेम्परेचर पर रखें, कभी भी इसको रैपिडली बॉयल नहीं करना है। स्किम द सरफेस एज ओपन एज रिक्वायर्ड। जितना भी सरफेस पे स्कम आता रहेगा उसको हम जब तक आता रहेगा उसको रिमूव करते रहेंगे। कीप द वाटर लेवल अबव द बोन्स। वाटर लेवल हमेशा बोन से ऊपर तक होना चाहिए। कुकिंग बोन्स एक्सपोज टू एयर विल टर्न देम डार्क एंड डिस्कलर द स्टॉक। तो वाइट स्टॉक या क्लियर स्टॉक बनाते समय हमें इसे ध्यान रखना है कि बोन्स कभी भी एयर के एक्सपोजर में नहीं आनी चाहिए। हमेशा बोन्स के लेवल से पानी का लेवल ऊपर होना चाहिए। सिमर फॉर द रिकमेंडेड टाइम। सिमरिंग हम हमेशा रिकमेंडेड टाइम के लिए करें, क्योंकि ओवर कुकिंग हमारे स्टॉक को क्लाउडी कर सकती है। तो हमें सिमरिंग टेम्परेचर, सिमरिंग टाइम पता होना चाहिए डिफरेंट स्टॉक का।
जैसा कि ब्राउन स्टॉक 6 to 8 आवर, वाइट स्टॉक 3 to 4 आवर। स्किम द सरफेस एंड स्ट्रेन द स्टॉक थ्रू ए क्लीन मसलिंग और टेमी क्लॉथ। सरफेस पे जितना भी स्कम आता है उसे स्ट्रेन करते रहेंगे और बाद में स्टॉक को साफ कपड़े यानी कि मुस्लिन क्लॉथ या स्ट्रेनर से स्ट्रेन करते हैं। उसके बाद कूल द स्टॉक एज क्विकली एज पॉसिबल। हमारा स्टॉक जब रेडी हो जाता है उसे हम जितना जल्दी हो सकता है ठंडा करेंगे और उसे स्टोर कर देंगे चिलर में। कूल द स्टॉक एज क्विकली एज पॉसिबल। कूलिंग द स्टॉक क्विकली एंड प्रॉपरली इज इम्पॉर्टेंट। Improperly cooled stock can spoil easily because it is a good breeding ground for bacteria. Do not refrigerate the hot stock. स्टॉक जैसे ही हमारा कम्प्लीटली रेडी हो जाता है उसको हम जल्दी स्टॉक को कूल करेंगे, ठंडा करेंगे और उसके बाद रेफ्रिजरेट कर देंगे, क्योंकि स्टॉक में काफ़ी सिंपल फॉर्म में हमारे पास न्यूट्रिशन है और न्यूट्रिशन जहाँ भी ज़्यादा होता है वहाँ पे बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। तो स्टॉक जैसे ही हमारा रेडी होगा उसको हम ठंडा करके रेफ्रिजरेट कर देंगे। कभी भी हॉट स्टॉक रेफ्रिजरेट नहीं करना, क्योंकि इससे फ्रीज़र भी ख़राब होने के चांसेस होते हैं और साथ ही साथ उसमें जो अदर प्रोडक्ट रखे हुए हैं वो भी ख़राब होने के चांस होते हैं। तो हमेशा हम स्टॉक को पहले ठंडा करेंगे बाहर और उसके बाद रेफ्रिजरेट करेंगे। फॉर ब्राउन स्टॉक द मीरपोआ मे बी ब्राउन विद द बोन्स when the bones are half brown at the mirepoix. However, some chefs prefer to add the mirepoix directly to the stock. अगर हम ब्राउन स्टॉक बना रहे हैं तो फिर हम मिरपोआ को ब्राउन करेंगे, अदरवाइज मिरपोआ हम लास्ट में यूज करेंगे अगर हम क्लियर स्टॉक बना रहे हैं। अगर हम ब्राउन स्टॉक बना रहे हैं तो फिर कोई टेंशन नहीं, हम अपने बोन्स को भी ब्राउन करेंगे और मिरपोआ को भी ब्राउन करेंगे और बाद में टोमेटो प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं। प्रोसीजर्स। Making stock may seem to a very simple procedure, however there are many steps involved. You must understand not only what to do but also why are you doing it. स्टॉक बनाना काफ़ी सिंपल सा प्रोसीजर जान पाता है, लेकिन हमें जो भी जितने भी स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व हैं सारे स्टेप्स केयरफुली फॉलो करने हैं। हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा ब्लांचिंग ऑफ बोन्स। ब्लांचिंग ऑफ द बोन्स। We know that proteins coagulated when heated. Many proteins dissolve in cold water but solidify in small particles or into froth and scum when heated. फर्स्ट पॉइंट है हमारा ब्लांचिंग ऑफ द बोन्स। बोन्स को हम हमेशा ब्लांच करते हैं और ब्लांच करने के बाद ठंडे पानी से हम स्टॉक मेकिंग की शुरुआत करते हैं। स्टॉक मेकिंग की शुरुआत हम ठंडे पानी से क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है बोन्स में कोलेजन या जिलेटिन नाम के काफ़ी प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स हमेशा हीट पाके कोआगुलेटेड हो जाते हैं, तो इसे हम हमेशा ठंडे पानी से यूज करते हैं ताकि ये ईजिली वाटर में डिजॉल्व हो सकें। इट इज़ दीज पार्टिकल दैट मेक्स ए स्टॉक क्लाउडी। मच ऑफ द टेक्निक ऑफ स्टॉक मेकिंग इन्वॉल्व्स अवॉइडिंग क्लाउडीनेस टू प्रोड्यूस ए क्लियर स्टॉक। द पर्पज ऑफ ब्लांचिंग द बोन्स इज टू रिड दैम ऑफ द इम्प्योरिटीज़। ब्लांच करने का एक पहला पर्पज़ ये भी है कि हमारे जितना भी इम्प्योरिटीज़ हो सकें ज़्यादा से ज़्यादा उसको हम पहले से ही रिमूव कर दें, विच कॉजेज क्लाउडीनेस। क्योंकि इम्प्योरिटीज़ जितनी ज़्यादा होती हैं हमारे स्टॉक के क्लाउडीनेस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और उसके बाद में ख़राब होने के भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। द बोन्स ऑफ यंग एनिमल्स आर हाइएस्ट इन द ब्लड एंड अदर इम्प्योरिटी दैट क्लाउड एंड डिस्कलर द स्टॉक। जो यंग एनिमल्स होते हैं इनके बोन्स का में काफ़ी पोरस होते हैं, काफ़ी ब्लड फाइबर्स होते हैं, तो इनके जब हम स्टॉक बनाते हैं तो हमारा स्टॉक डिस्कलर या क्लाउड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं पर अगर हमारा एजिड एनिमल है तो उसकी बोन्स काफ़ी सख्त होती हैं, हार्ड होती हैं, तो वहाँ पे क्लाउडीनेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। शेफ्स टेंड टू डिसएग्री ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लांचिंग। सम फील दैट द प्रोसेस कॉजेज फ्लेवर लॉस, अदर फील इट इज़ नेसेसरी टू प्रोड्यूस ए क्लियर स्टॉक। तो कुछ शेफ्स की डिसएग्रीमेंट्स हैं, कुछ का मानना है कि ब्लांचिंग से थोड़ा सा फ्लेवर उसका लेस हो जाता है। जाहिर सी बात है थोड़ा सा फ्लेवर लेस हो सकता है, लेकिन हमारे पूरे स्टॉक की हमें देखना कि पूरा स्टॉक का फ्लेवर ख़राब ना हो जाए, उसके लिए हम थोड़ा सा फ्लेवर लॉस कर सकते हैं। तो उसकी इम्प्योरिटीज़ को रिड्यूस करने के लिए उसका ब्लांचिंग करना ज़्यादा ज़रूरी है। फिश बोन्स आर नॉट ब्लांच बिकॉज ऑफ देयर शॉर्ट कुकिंग टाइम। फिश बोन्स आर वेरी सॉफ्ट, क्योंकि हमारी फिश बोन्स जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं तो इनको हम कम से कम कुकिंग करने की कोशिश करते हैं, कभी भी रोस्ट नहीं करते हैं, इनका कभी ब्राउन स्टॉक नहीं बन सकता है। तो इनको हम ब्लांच भी नहीं करते हैं, इनको हम अच्छे से वॉश कर लेते हैं और उसके बाद हम अपना स्टॉक मेकिंग शुरू कर सकते हैं। ब्लांचिंग इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट, कट द बोन्स इनटू स्मॉल पीसेस एंड रिंस इन कोल्ड वाटर। दिस वॉशेस ऑफ द ब्लड एंड सम ऑफ द अदर इम्प्योरिटीज़।
दिस स्टेप इज स्पेशली इम्पॉर्टेंट इफ़ द बोन्स आर नॉट एब्सोल्युटली फ्रेश। ब्लांचिंग के 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट जिसमें हम बोन्स को छोटे छोटे पीसेस में काटते हैं और उसके बाद ठंडे पानी से वॉश कर लेते हैं ताकि जितना भी ब्लड पोर्शन है या इम्प्योरिटीज़ हैं वो हम पहले से ही उसकी रिमूव कर दें। सेकेंड वन है प्लेस द बोन्स इन ए स्टॉक पॉट एंड कवर विद द कोल्ड वाटर। रिमेंबर इम्प्योरिटी डिजॉल्व इजली इन कोल्ड वाटर, क्योंकि इम्प्योरिटीज हमेशा ठंडे पानी में इजली डिजॉल्व हो जाती हैं, इसलिए हम क्या करेंगे पहले उसको वॉश कर लेंगे, फिर बोन के स्टॉक पॉट में रखेंगे और ठंडे पानी में भर देंगे। और उसके बाद ब्रिंग द वाटर टू ए बॉयल, उस वाटर को तेज़ी से बॉयल करेंगे। एज द वाटर हीट्स इम्प्योरिटी सॉलिडिफाई एंड राइज टू द सर्फेस एज स्कम। ठंडे पानी में हम बोन्स को डिप करके रखेंगे ताकि उसकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं पानी में डिजॉल्व हो जाए। उसके बाद उसको बॉयल करेंगे। बॉयल करने से क्या होती है इम्प्योरिटीज़ कोआगुलेट हो जाती है और सरफेस पे झाग या स्कम के रूप में तैयार हो जाती है और जिसे हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। ड्रेन द बोन्स एंड रिंस देम वेल, द बोन्स आर नाउ रेडी फॉर द स्टॉक पॉट। तो ये हमारा फर्स्ट है ब्लांचिंग का प्रोसेस। ब्लांचिंग में हम क्या करेंगे, सबसे पहले बोन्स को छोटे पीसेस में कट करेंगे और उसे पहले ठंडे पानी से वॉश करेंगे। फर्स्ट स्टेप है ये। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम उसे फिर से ठंडे पानी में स्टॉक पॉट में भर के रख देंगे ताकि हमारी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो ठंडे पानी में डिजॉल्व हो जाए। और उसके बाद फिर इसे हम बॉयल करना शुरू करेंगे। और एक बॉयल देने से क्या होगा कि हमारा जो इम्प्योरिटीज़ हैं कोआगुलेटेड हो जाएंगी और स्कम के रूप में ऊपर आ जाएंगे, जिसे हम इजीली स्ट्रेन कर सकते हैं। तो एक बॉयल के बाद फिर हम उसको स्ट्रेन कर देते हैं, बोन्स को अच्छे से वॉश कर लेते हैं और अब हमारे पास जो बोन्स है ये इम्प्योरिटीज़ लेस है, ज़्यादा से ज़्यादा शार्प क्वान्टिटी में है और इसको अब हम स्टॉक पॉट में डाल सकते हैं और हमारा स्टॉक इससे बनना रेडी हो सकता है। टू मेक ब्राउन स्टॉक वन मोर स्टॉक इन्वॉल्व। अगर हम ब्राउन स्टॉक बना रहे हैं तो हमारे पास एक स्टॉक और इन्वॉल्व होता है जिसमें हम इसकी ब्राउनिंग करते हैं, यानी कि ब्राउनिंग ऑफ द बोन इन द अवन। क्योंकि हमें ब्राउन स्टॉक बनाना है तो हम अपने स्टॉक बोन्स को ब्राउन कर लेते हैं। ब्राउनिंग कैसे करते हैं, अवन में इसको रोस्ट करके। दिस विल इम्पार्ट द रिक्वायर्ड कलर टू द स्टॉक। प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग स्टॉक। तो अब हम आते हैं हमारे बेसिक प्रोसीजर क्या है स्टॉक मेकिंग के। फर्स्ट, ऐड द ब्लांच बोन टू द कोल्ड वाटर। हम स्टॉक मेकिंग शुरुआत करते हैं फिर से ठंडे पानी से ही। ठंडे पानी में हम बोन्स को ब्लांच बोन जो हमारी उसको डिप करेंगे। ब्रिंग द वाटर टू ए बॉयल देन रिड्यूस टू ए सिमर। वाटर को बॉयल करेंगे और उसके बाद रिड्यूस करके सिमरिंग टेम्परेचर पर लगा देंगे। Skim the scum that rises to the surface carefully. Add the mirepoix and the sachet. Add tomato products if used. Do not let the stock boil rapidly. Keep it at low temperature. Boiling makes the stock cloudy. Skim the surface as often as required. Keep the water level above the bones. Cooking bones exposed to air will turn them dark and discolor the stock. Simmer for the recommended time. So हमारे पास बेसिक फार्मूला क्या है, प्रिपरेशन के प्रोसीजर क्या है। हम बोन्स को हमेशा ठंडे पानी से शुरू करेंगे, उसके बाद उसे बॉयल करेंगे हल्का सा और उसके बाद सिमरिंग टेम्परेचर पर लगा देंगे, सिमर होने देंगे। सिमर होने के बाद हमें एक चीज़ ध्यान रखनी कि जितना भी उसकी इम्प्योरिटीज़ हैं स्कम बन के जितना भी सरफेस पे आ रही है उसको रिमूव करते रहना। जितना जितना आता जाए उसे हम जल्दी जल्दी रिमूव करते रहेंगे। और लास्ट में उसमें हम मिरपोआ और सैशे ऐड करेंगे। अगर हम ब्राउन स्टॉक बना रहे हैं तो टोमेटो प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं। हमें याद रखना कभी भी हम स्टॉक को रैपिडली बॉयल नहीं करेंगे, ऐसा करने से हमारा स्टॉक क्लाउडी हो सकता है। और वाटर लेवल जैसे जैसे कुकिंग होती रहती है वाटर इवेपोरेट होता है, वाटर लेवल कम हो सकता है। तो हमें ध्यान रखना कभी भी हमारी बोन एक्सपोज नहीं होनी चाहिए एयर को। अगर हमारा पानी कम हो चुका है, हड्डियाँ बाहर आ रही हैं पानी के लेवल से, तो फिर हम उसमें फिर से ठंडा पानी ऐड कर देंगे। तो बोन्स हमेशा हमारी डूबी रहनी चाहिए। सिमर फॉर द रिकमेंडेड टाइम। हमें ध्यान रखना कि हम किस तरह का स्टॉक बना रहे हैं, कौन सी बोन्स यूज कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से हम सिमरिंग टाइम पे उसको सिमर करेंगे। कभी भी ओवर कुकिंग नहीं करनी, क्योंकि ओवर कुकिंग से भी हमारा स्टॉक क्लाउडी हो जाता है। ब्राउन स्टॉक हैव 6 to 8 hours while white stock had 3 to 4 hours. Skim the surface and strain the stock through a clean muslin cloth. स्टॉक हमारा बन जाता है, रेडी हो जाता है, उसके बाद उसे हम साफ मसलिन क्लॉथ या स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेंगे। कूल द स्टॉक एज क्विकली एज पॉसिबल। कूलिंग स्टॉक क्विकली एंड प्रॉपरली इज इम्पॉर्टेंट। Improperly cooled stock can spoil easily because it is good breeding ground for bacteria. Do not refrigerate the hot stock. स्टॉक हमारा रेडी हो जाता है, उसके बाद उसे हम जल्दी से जल्दी ठंडा कर लेंगे, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया ग्रोथ बहुत जल्दी हो सकती है।
तो जल्दी से जल्दी ठंडा करेंगे और उसे रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर देंगे। कभी भी हॉट स्टॉक रेफ्रिजरेट नहीं करना, क्योंकि ये हमारे फ्रीजर को भी ख़राब कर सकता है, साथ ही साथ अदर प्रोडक्ट जो फूड आइटम्स हैं उन्हें भी ख़राब कर सकता है। नोट, यहाँ पे हमें ध्यान रखना, अगर हम ब्राउन स्टॉक बना रहे हैं तो फिर एक स्टेप और इन्वॉल्व होगा जिसमें कि हम ब्राउनिंग ऑफ बोन्स करते हैं। तो हम इसमें बोन्स की ब्राउनिंग करते हैं, यानी कि उसको रोस्ट करके ब्राउन कर लेते हैं और मीर पोहा को भी ब्राउन करते हैं, और साथ ही साथ उसमें हम टोमेटो प्यूरी या टोमेटो जूस या टोमेटो का कोई भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। 7 principles for stock making. First one is cold water. Cover the ingredient with clean cold water. Starting in this manner allows the blood and protein to dissolve. As the temperature rises, the protein coagulates, solidify, and float to the surface where they can be skimmed off. If they were started in hot water, the proteins would solidify, stick to the bones, and then disperse into the stock, making it cloudy and muddy tasting. तो फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारा कोल्ड वाटर। हमेशा स्टॉक की जो कुकिंग है स्टार्टिंग हमेशा कोल्ड वाटर से करेंगे। क्यों करेंगे? कोल्ड वाटर के फ़ायदे हैं, कोल्ड वाटर में जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है वो डिजॉल्व जल्दी हो सकती, और प्रोटीन्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के वो डिजॉल्व हो सकते हैं, ब्लड हमारा वो डिजॉल्व हो सकता है। तो उसके फ़ायदे ये हैं कि जब हम कोल्ड वाटर से शुरू करते हैं कुकिंग, तो जब जैसे जैसे वाटर टेम्परेचर गर्म होने लगता है, हमारे जो प्रोटीन्स हैं या ब्लड है कोआगुलेट हो जाते हैं और ये सरफेस पे झाग बन के तैरने लग जाता है, और इनका रिमूव करना बहुत ईजी हो जाता है। इफ़ दे स्टार्टेड इन हॉट वाटर द प्रोटीन विल सॉलिडिफाई। अगर हम इसे डायरेक्ट गर्म पानी से शुरू करें तो फिर हमारा प्रोटीन सॉलिडिफाई होकर बोन से चिपक जाता है और वो स्कम सरफेस पे आता नहीं, इसको रिमूव करना कठिन हो जाता है, और फिर क्या करता है धीरे धीरे हमारे स्टॉक को क्लाउडी करना शुरू कर देता है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा हमेशा याद रखना, हम कोल्ड वाटर से शुरू करेंगे। सेकेंड वन इज शिमर नेवर बॉयल। स्टॉक को कभी भी बॉयल नहीं करना, हमेशा सिमरिंग प्रोसेस में रखना, क्योंकि बॉयल करने से भी हमारे क्लाउडीनेस आती है। ए स्टॉक शुड बी ब्रॉट टू ए बॉयल एंड देन इमीडिएटली रिड्यूस टू ए शिमर। एट ए शिमर द इंग्रेडिएंट्स लीव द मैक्सिमम फ्लेवर विदाउट ब्रेकिंग डाउन इनटू पर्टिकुलर मैटर। If stock boils for even a few minutes, that the fat will emulsify into the stock and the stock will become cloudy, making for a poor performance, a muddy taste and a greasy finish. The type of texture will spoil soup and sauces. तो स्टॉक को कभी भी बॉयल नहीं करना, इसे हमेशा सिमरिंग प्रोसेस में करना है। सिमरिंग प्रोसेस के फ़ायदे हैं कि सिमरिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो भी हमारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए उसका न्यूट्रिशन धीरे धीरे करके वाटर में एक्सट्रैक्ट होना शुरू कर जाता है। अगर हम तेज़ी से उसे बॉयल करें तो फिर न्यूट्रिशन कम एक्सट्रैक्ट होगा, बल्कि वो इंग्रेडिएंट कुक होना ज़्यादा शुरू हो जाता है, और कुकिंग होने के साथ धीरे धीरे इमर्स होने लग जाते हैं, वो क्लाउडी करने लग जाते हैं। तो हमेशा स्टॉक को हम सिमरिंग प्रोसेस में करेंगे ताकि हमारा स्टॉक क्लियर बन सके। नेक्स्ट वन इज स्किम फ्रिक्वेंटली। जितना भी हमारा इम्प्योरिटीज है वो एज ए स्कम के रूप में हमारे सरफेस में आता रहेगा। तो स्किम फ्रिक्वेंटली, जितना भी हमारा फ्रॉथ आता रहेगा उसे हम फ्रिक्वेंटली स्किमिंग करते रहते हैं, उसे हम लैडल से हटाते रहते हैं। स्किमिंग द कोआगुलेटेड मासेस ऑफ द सरफेस ऑफ द स्टॉक थ्रू आउट द कुकिंग प्रोसेस डिक्रीजेज द लाइवलीहुड ऑफ क्लाउडिंग द स्टॉक। तो जितना भी हमारा स्कम आता रहेगा उसे रिमूव करते रहेंगे, क्योंकि अगर वो रिमूव नहीं करते हैं तो कुकिंग के दौरान वो फिर क्लाउड करने लग जाता है, हमारे स्टॉक को गंदा करने लग जाता है। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेन केयरफुली। जितना भी हमारा फ्रॉथ है उसमें सारी इम्प्योरिटीज हमारी सरफेस में रहती है, तो जब भी हम इसको स्ट्रेन करते हैं तो कोशिश करते हैं कि हमारा जो पूरा स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन ना हो, ईजिली हम इसे एक कॉर्नर से स्ट्रेन कर सकें। दिस इन्वॉल्व्स ए चाइना कैप सेट इनसाइड ए चिनोइस या चिनवा। In order to use the stock, you must separate the solid from the liquid. While doing so, it is important not to disturb the solid in the bottom of the pot. स्ट्रेनिंग बहुत ही केयरफुली करेंगे। हमारा जो भी बोन्स, वेजिटेबल्स, मीट पोहा के या जो भी सॉलिड मटेरियल्स हैं उनको हम ज़्यादा डिस्पर्स नहीं करेंगे और इजीली केवल लिक्विड पोर्शन को हम स्ट्रेन करके बाहर निकाल लेंगे। यूज द फॉलोइंग प्रोसीजर। स्किम द फैट फ्रॉम द सरफेस। Remove the stock from the heat and carefully ladle the stock out from the pot without stirring the stock. Pour the stock through a china cap set inside a chinois. It is a sanitized metal container.
नेक्स्ट वन इज कूल क्विकली, हमारा स्टॉक रेडी हो चुका, अब हमारे पास फिफ्थ पॉइंट आता है कूल क्विकली। इट इज़ ऑफ द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट स्टॉक्स आर कूल क्विकली एंड विद मिनिमम अमाउंट ऑफ एजिटेशन। तो जितना जल्दी हो सकता है हम उसको कूल करेंगे और स्टोर कर लेंगे। नेक्स्ट वन है स्टोर प्रॉपरली, स्टोरिंग कर इसकी प्रॉपरली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें काफ़ी सिंपल फॉर्म में हमारे पास न्यूट्रिशन अवेलेबल है। जिस फूड में भी सिंपल फॉर्म में न्यूट्रिशन अवेलेबल होता है वहाँ पे बैक्टीरिया के ग्रोथ जल्दी से होने के चांसेस होते हैं, और बैक्टीरिया ग्रोथ का सीधा मतलब हमारा प्रोडक्ट ख़राब हो जाना। तो स्टोरिंग इसकी बहुत ही ज़रूरी है। स्टोर इन ए प्लास्टिक स्टोरेज कंटेनर एंड लेवल द कंटेनर इंडिकेटिंग द कंटेंट्स डेट एंड द सेशन दैट स्टार्टेड द स्टॉक। Store in the container in the refrigerator. As the stock chills, the remaining fat will rise and solidify, forming at the fat cap. The fat cap provides an extra barrier against contamination and aerobic bacterial growth. तो इसमें क्योंकि हमारे काफ़ी फैट कंटेंट्स भी होते हैं, फैट हमेशा सॉलिड हो जाता है जब ठंडक में पहुंचता है, तो जब भी हम इसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर करेंगे तो इसका जो फैट पोर्शन है वो सरफेस पे सॉलिड होकर जम जाता है, और फैट का पोर्शन क्या होता है, एक बैरियर का काम करता है, क्योंकि बैक्टीरिया फैट से इधर से उधर नहीं जा सकता। तो स्टॉक की जो शेल्फ लाइफ है वो और इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट वन है डिग्रीज। बिफोर यूजिंग द स्टॉक केयरफुली लिफ्ट द फैट कैप ऑफ द सरफेस ऑफ द स्टॉक, स्क्रैपिंग ऑफ द ऑल स्मॉल बिट ऑफ फैट। इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू डिसग्रीस योर स्टॉक व्हेन इट इज़ चिल्ड। All the preparation depend on the use of fat free stock। तो जब भी हम यूज करेंगे तो ऊपर का जो फैट का लेवल है जो फ्रोजन हो चुका है उसको हम रिमूव कर देंगे। जैसे ठंडे कंडीशन में, कोल्ड कंडीशन में रिमूव करना काफ़ी आसान है, क्योंकि वो सॉलिड होके अलग हो जाता है। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड अवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ फर्स्ट यूनिट स्टॉक। वी हैव रीड अबाउट द डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स, रूल्स फॉर स्टॉक प्रिपरेशंस। For the recipes of various stock, we have to just follow the procedure same as above। सारी जो प्रोसीजर हमें सेम फॉलो करने हैं हर तरह के स्टॉक्स के लिए। डिफरेंसेस हैं केवल टाइप्स ऑफ बोन्स में। अगर हमें चिकन स्टॉक बनाना तो फिर हम चिकन की बोन्स यूज करेंगे, बीफ स्टॉक बनाना तो फिर हम बीफ की बोन्स यूज करेंगे, और मटन स्टॉक बनाना तो हम मटन की बोन्स यूज करेंगे। तो बस बोन्स में डिफरेंसेस है, बाकी सारे प्रोसीजर, सारे फार्मूलाज जो भी हैं, प्रिंसिपल्स हैं, हमें सेम फॉलो करना है। So thanks for watching and see you in the next lecture video.